Hello students, welcome back. Today we shall be starting off from the point where we had stopped. So basically in the previous class we were studying about the amino acids. We did study about the structure of the amino acid wherein we did see that it possesses an amino group and carboxylic group. So this is basically a monomer of the protein. So when many amino acids join together, it forms what? It forms the protein. Fine. So we did studied about the very basic, the monomer of a protein, that is amino acid. There are 20 types of amino acid. We did studied about the properties of amino acid, that is it is amphoteric, it has the zwitterions, fine, it possesses the property of zwitterion getting turned into cation and anion, fine. Similarly we did studied about the types of amino acid: essential, non-essential and conditional amino acids. Then we started off with the formation of the peptide bond. Peptide bond as in the bond which is formed between the two amino acids is nothing but this bond is termed to be as the peptide bond. So the chain of the amino acid, the chain of the amino acids which is formed by the peptide bond forms nothing but the protein. So we started off with studying about the proteins. We did study about that protein are the main important types of that is a type of component which is which performs almost all the function inside the living organisms. Fine. For example, some of them transport nutrients across the cell membrane, some fight infection, that is we studied about antibodies, then some are hormones, some are enzymes and so on and so on. Fine. Then we did studied about how an peptide bond is formed. A very important question again, that how a peptide bond is formed. So what happens basically, we shall just have a quick recap wherein if you can see over here there are two amino acids, first and the second one. Fine. So basically what happens, the carboxylic group at one end of the amino acid and the amino group at the other amino acid. This is the first one, this is the second one. So the carboxylic group, as we can see, the carboxylic group of the first amino acid and the amino group of the the second one, the second amino acid, they react together. Fine. Wherein what happens, that is the water molecule, as we can see, that is HO from the carboxylic group of first amino acid and hydrogen from another amino acid from the amino group will be released, that is in the form of water, and here we will be left with C double bond O and NH. So the bonding that happens, that is C double bond O NH, this is nothing but this forms the peptide bond. Fine. So likewise this is the first, second, so on, third, fourth, fifth, and so many amino acids join wherein it forms a chain, and that chain is termed to be as polypeptide chain. It is termed to be as many peptide bonds, so it is termed to be as polypeptide. Fine. So polypeptide chain, the chain of the amino acid which is formed by many peptide bond, termed to be as polypeptide. Fine. And it is formed by the dehydration process, that is removal of water molecule. Now this polypeptide chain is nothing but it forms the protein. So some protein are just single chain of amino acid. Some of them are many chains which are grouped together, but basically the polypeptide chain forms nothing but the proteins. So that's all that we have studied. Fine. So that day we even did study about that if there are only two amino acids, then it is termed to be as dipeptide. If there are three amino acids, it is termed to be as tripeptide. Fine. And so on. If there are 10, it is termed to be as oligopeptide, and if it is more than 10 peptide bonds within a given chain, then it is termed to be as a polypeptide. Fine. So basically what happens, the proteins that we consume in the food, fine, those are nothing but the polypeptide, and those polypeptide breaks with the help of the enzyme and convert them back to various amino acids. Fine. So basically this amino acids then on inside our body join together, forming important types of proteins which makes our cell membrane, which works as hormones, which works as enzymes, and so on and so on. Fine. Now we have studied this much. Today we shall be starting off with studying about the structure of the proteins. So when we talk about the structure of the proteins, being a macromolecule, protein is what? It is a macromolecule which is formed from a micromolecule termed to be as amino acid. So protein is a macromolecule which is formed from a micromolecule. Which micromolecule? Amino acid. Fine. So we are now studying about a macromolecule, that is protein.
Proteins are not freely soluble in water but forms colloidal complex with the same. Fine. So basically when we talk about proteins, they are not soluble in water. This is to be remembered. Fine. But it forms a complex. We have different kind of solution. Fine. So it forms a colloidal solution with the water. The same as in with water, it forms a colloidal solution. Chemically, a protein is made up of what all compounds, what all elements can be are included in a protein. So basically a protein is made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and it could have sulfur too. Fine. So basically it has carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. How does it have carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen? Because it contains what? It contains amino acid, and amino acid what? It is made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Fine. And along with it could also contain sulfur. Fine. Some protein additionally contains not only sulfur, but some of them contains phosphorus, iron, and other elements too. But these are the ones, sulfur, phosphorus, and iron, which could be included in the formation. That is, it forms different kind of amino acid. That is the R group that we have seen in the amino acid. It could be sulfur, phosphorus, iron, and it could be other elements too. Every protein has three-dimensional structure, and that corresponds to its function. So according to the function, the structure of the protein is also different. तो हम जैसे समझते हैं कि हर प्रोटीन का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, उसके काम के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसके फंक्शन के हिसाब से उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है. फाइन. The four structural organization in proteins are what? It could be of any of the four types. Fine. A, B, C and D. The protein structure, जब हम उसके structure की बात करते हैं, it could be primary structure, it could be secondary, it could be tertiary, and it could be quaternary. So we should understand what do we mean by the structures basically. Yes, not necessary all four levels are needed to become functional. मतलब में इसका ये समझना हमें ज़रूरी है. वो पहले प्राइमरी बनता है, फिर प्राइमरी कॉइल होके बनता है सेकेंडरी. जैसे कि अमाइनो एसिड की चेन है, मैं आपको बहुत सिंपल समझाती हूँ. अमाइनो एसिड की चेन है तो ये बन गया एक पॉलीपेप्टाइड है, समझ लो एक पॉलीपेप्टाइड है इधर. तो ये चेन एक प्रोटीन हो सकता है. तो दिस इज द प्राइमरी सिंपल स्ट्रक्चर. अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर थोड़ा कॉइल होके सेकेंडरी बनाता है, सेकेंडरी और ज़्यादा कॉइल होके टर्शियरी बनाता है, और टर्शियरी और ज़्यादा कॉइल्ड होके उसके बहुत सारे प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड मिलके क्वाटरनरी बनाता है, जो हम अभी सीखेंगे. तो बेसिकली ये क्या कहना चाहता है, ऑल फोर लेवल्स आर नॉट नेसेसरी टू बिकम फंक्शनल. एज इन किसी में सिर्फ इतनी चेन होने पर भी वो प्रोटीन फंक्शनल हो जाता है और वो प्रोटीन काम करने लगता है. बट किसी में क्या होता है, उसको प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी से क्वाटरनरी तक जाना पड़ता है, तब वे फंक्शनल होता है. जैसे कि हम बात कर ले फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन की. तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमें पता है, which contains the main group as iron, and this hemoglobin protein has a quaternary structure. उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्वाटरनरी. तो क्या कहना चाहता है, कोई प्राइमरी में भी फंक्शनल बन जाता है और किसी को सारे लेवल पास करने पड़ते हैं. कोई सेकेंडरी टर्शियरी में भी फंक्शनल हो सकता है. फाइन. यस. Moving ahead, polypeptide chain after its synthesis go through multiple modification in order to attain the functional form. For example, जो चेन होती है, जैसे मैंने आगे बात की, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है अमीनो एसिड की, दोज चेन आफ्टर इट्स सिंथेसिस, एक बार उसकी फॉर्मेशन हो जाए थ्रू मल्टीपल मॉडिफिकेशन, वो क्या करता है, फिर मॉडिफिकेशन करता है अपने में. मॉडिफिकेशन मतलब में उसके स्ट्रक्चर चेंज करता है. वो प्राइमरी है तो सेकेंडरी बनेगा, टर्शियरी बनेगा, क्वाटरनरी बनेगा, अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन. फाइन. अकॉर्डिंग टू इट्स नीड. तो वो मल्टीपल टाइम्स मॉडिफिकेशन करेगा और फिर वो फंक्शनल बन सकता है. फाइन. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक, I have written over your Golgi bodies. Why have I written over your Golgi bodies? वो सेल के अंदर कौन सी प्लेस होती है जहाँ वे जो प्रोटीन्स बनते हैं वो मॉडिफाई होते हैं, तो वो होते हैं गोल्जी बॉडीज़ के अंदर. गोल्जी बॉडीज़ के अंदर क्या होता है, जो भी प्रोटीन्स बनते हैं उसका मॉडिफिकेशन होता है. फाइन. नाउ the simplest level of the protein structure, that is the primary structure, सबसे जो simplest form है उसको हम क्या बोलेंगे, primary structure, is simply the sequence of amino acid in a polypeptide chain. hundreds हो सकते हैं, thousands हो सकते हैं, thousands of amino acid हो सकते हैं, hundreds of amino acids हो सकते हैं, और simple सी chain है, कुछ नहीं है, amino acid सारे join हो गए और एक chain बन गई है और वो protein बन जाता है, तो उसे हम बोलेंगे primary structure. उसे हम क्या बोलेंगे, primary structure. फाइन. सो बेसिकली जैसे कि हम इसकी बात कर ले प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तो जैसे मैंने इधर एक एग्जांपल दिया है, समझ लो इंसुलिन हार्मोन है. जो इंसुलिन हार्मोन होता है
यस। सो इंसुलिन हार्मोन जो हम पढ़ते हैं, जिन 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 लोगों को डायबिटीज़ होता है उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पेंक्रियाज में से बनता है, जो हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी दो चेन होती हैं, ए चेन और बी चेन, बट उसका स्ट्रक्चर सिंपल है, मतलब में इट इज़ अ सिंपल चेन ऑफ अमाइनो एसिड। दिस टू चेन आर जॉइंड बाय सल्फर बॉन्ड्स, बट रेदर ए चेन एंड बी चेन जो होती है वो बहुत सिंपल होती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज टर्म टू बी एज द टू बी having as the primary structure. So this has insulin hormone as the primary structure. Now it is the so moving ahead with the second one, when we talk about this one, so the second one is the secondary structure, the secondary structure of the protein. So what is basically secondary structure? So it is the development of the new steric relationship among what? Among the amino acids present in the linear sequence inside a polypeptide. इसको ध्यान से समझना. It is the development of the new steric relationships of amino acid. ये किसका नया रिलेशन है? अमीनो एसिड्स का. जो अमीनो एसिड लाइन में जॉइंट होती हैं उनका नया रिलेशनशिप है. अब क्या है? प्रेजेंट इन द लीनियर सीक्वेंस, जो लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट होती है उनके बीच बीच कोई कनेक्शन बनता है और उसकी वजह से जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर. फाइन. अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं वो दो तरह के होते हैं, दैट इज अल्फा हेलिक्स हो सकते हैं और बीटा हेलिक्स हो सकते हैं. दो तरह के. पहले हमने क्या बात की? प्राइमरी. प्राइमरी मतलब में क्या होता है? एकदम सीधी सी अच्छी सी चेन होती है, उसमें कोई अमीनो एसिड के बीच में कोई कनेक्शन, जितना सिर्फ ये पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं बस इतना ही होता है. फाइन. बट अब जब सेकेंडरी की हम बात करें तो इनके जो अमाइनो एसिड हैं वे अमाइनो एसिड एक दूसरे से कुछ कनेक्शन रखते हैं. जैसे कि क्या? तो वो हम देखेंगे. सो बेसिकली वो दो तरह के हो सकते हैं, दैट इज इट कुड बी अल्फा हेलिक्स और इट कुड बी बीटा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स की हम बात करें तो राइट हैंडेड रोटेशन ऑफ स्पाइरली और हेलिकली कॉइल्ड चेन, जो सीधी चेन होती है वो कर्व हो जाती है. क्या हो जाती है? कर्व हो जाती है. द राइट हैंडेड रोटेशन, लेफ्ट हैंडेड नहीं, याद रखना, राइट हैंडेड रोटेशन ऑफ द स्पाइरली और हेलिकली कॉइल्ड चेन विथ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 अमीनो एसिड इन ईच टर्न. तो ये क्या कहना चाहती हैं? जैसे कि आप समझ सकते हो, ये देखो, जैसे कि अल्फा हेलिक्स की मैंने बात की तो अमीनो एसिड की चेन जो सीधी होती है, मतलब ये सीधी एज इन उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं होता. समझ लो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है. समझ लो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है. तो इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई ये सारे अमीनो एसिड हैं जो लाइन में सिर्फ ऐसे जॉइन हो गए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से. बाकी किसी अमीनो एसिड का किसी अमीनो एसिड्स के साथ सिर्फ ये पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कोई रिलेशनशिप नहीं होता. फाइन. सो दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सीधा साधा स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर. अब हम जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो अमीनो एसिड बीच बीच में कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ नया रिलेशनशिप बना रहे हैं, कुछ नए बॉन्ड बना रहे हैं. सो दैट इज अल्फा हेलिक्स की हम बात करें तो इट इज द राइट हैंडेड रोटेशन, फाइन, ऑफ द सिंपल अमीनो एसिड चेन. One of the amino acid is hydrogen bonded to the amino group. So that is the carboxylic group of one amino acid. एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ध्यान से समझना, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, yes, the carboxylic group of one amino acid is hydrogen bonded. वो किससे बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन से to the amino acid, to the amino group of and amino acid. दूसरे अमीनो ग्रुप एसिड के साथ उसके जो अमीनो ग्रुप है उसके साथ अटैच होता है वाया दी, दैट इज, समझ लो ये एक अमीनो एसिड है. जैसे कि मैंने बात कर ली R1, ये एक अमीनो एसिड है, ये कोई दूसरा अमीनो एसिड है, समझ लो आप. फाइन. जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, सपोज दिस इज अनदर अमीनो एसिड, तो इसका जो कौन सा ग्रुप है? अमीनो ग्रुप. तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन से. किससे बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन से. और उसका कुछ अलग ही स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर. और वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है? अल्फा हेलिक्स, जो ऐसे बनाता है, और वो होता है अल्फा हेलिक्स. सो बेसिकली हम उसको समझेंगे जैसे कि यस, एक टर्न की बात कर लो, जैसे कि ये एक टर्न हो गया, फिर ये दूसरा टर्न हो गया. तो एक टर्न की बात करते हैं हम तो 1, 2 और 3 एंड ऑलमोस्ट 4th इधर है. तो फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड अमाइनो एसिड एंड ऑलमोस्ट हाफ। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने होते हैं? 3 एंड हाफ, 1 2 3, और ये जो फोर्थ वाला है वो थोड़ा सा इसके अंदर हेलिक्स के अंदर कवर हो जाता है। तो 3 एंड हाफ अमीनो एसिड होते हैं एक हेलिक्स में। तो वैसे ही दूसरे हेलिक्स की हम बात करेंगे तो जैसे कि ये हाफ, फिर 1 2 एंड 3, तो वो हो गया दूसरा हेलिक्स। फाइन, वैसे ही तीसरा हेलिक्स चालू होगा, वैसे ही एक एक हेलिक्स के अंदर होते हैं 3 एंड हाफ अमीनो एसिड। फाइन, और वो कैसे बॉन्ड होते हैं? तो दैट इज वी कैन सी दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ओवर हियर वेर इन यू कैन क्लियरली सी दैट इज द द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड। समझ लो ये पहला अमाइनो एसिड है R1, इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो आप क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज अटैचिंग इटसेल्फ टू द अमीनो ग्रुप ऑफ नॉट द सेकेंड वन नॉर द थर्ड वन, रेदर द फोर्थ वन। किसके? फोर्थ जो अमीनो एसिड है उसके फोर्थ जो अमीनो एसिड है उसके अमीनो ग्रुप के साथ वो अटैच हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ हाइड्रोजन इन द मिडवे। कैन यू सी दिस वन? सो ऐसी अटैचमेंट होने की वजह से एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है और उसे हम बोलेंगे अल्फा हेलिक्स। फाइन, वैसी ही कंटिन्यूस वो रोटेशन कंटिन्यू वो चलती रहती है। फाइन, so this is basically hopefully you have understood about the alpha helix। वैसे ही हम बात करेंगे जैसे कि बीटा हेलिक्स की बात करेंगे। तो जो बीटा हेलिक्स होते हैं तो वो जो प्रोटीन के जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो जिगजैग पैटर्न में होते हैं। जैसे कि ये अमीनो एसिड की चेन है, फाइन, बट जिगजैग पैटर्न में, और ये जो मैंने लाइन बनाई है दैट इज दोज आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये एक जो चेन है, दूसरी जो चेन है, फाइन, समझ लो आप, ये जो चेन है वे सारी हाइड्रोजन से बॉन्डेड होती हैं। जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है दैट इज नथिंग बट द हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज कनेक्टिंग द फर्स्ट प्लेट विद द अनदर प्लेट, एंड देयरफॉर इट इज टर्म टू बी एज नथिंग बट बीटा प्लीटेड भी इसको बोलेंगे। बीटा हेलिक्स की जगह पे इसको हम बीटा प्लीटेड भी बोल सकते हैं। फाइन, तो ये बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। वैसे ही अगर उसमें सपोज समझ लो उसके जो अमीनो एसिड्स हैं जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो पहला अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फोर्थ जो अमीनो एसिड होता है उसका जो अमीनो ग्रुप होता है उसके साथ हाइड्रोजन से लिंक होता है। फाइन, समझना आप ये चीज़, तो उसे हम बोलेंगे, और वो हेलिकल स्ट्रक्चर फिर बनाएगा क्योंकि उसको खींचेगा हाइड्रोजन, तो उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, तो वो बनेगा अल्फा हेलिक्स। और वो अगर ऐसे जिगजैग पैटर्न में होगा तो उसे हम बोलेंगे क्या? उसे हम बोलेंगे बीटा हेलिक्स। क्या बोलेंगे? बीटा हेलिक्स। फाइन, और ये C और ये N क्या है? जैसे भी कहीं भी अमीनो एसिड चालू हुआ तो एक साइड होगा अमीनो ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक साइड होगा अमीनो ग्रुप। तो जिस साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसे हम C नाम देंगे, और जिस साइड लास्ट में N अमीनो ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको हम नाम क्या देंगे? N नाम देंगे। फाइन, यस, नाउ hopefully you have understood about the alpha helix to even the beta helix, that is nothing but it is a polypeptide chain of amino acid, fine, and which has nothing but the hydrogen bond which is been linking the different amino acids, fine, और वो plate like structure बनाता है। जब helix बनेगा तो right handed helix बनेगा तो उसे हम बोलेंगे alpha helix, और जब plate like structure बनाएंगे तो उसे हम beta pleated भी बोल सकते हैं। fine, now मूविंग अहेड विद नेक्स्ट वन दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब ज़्यादा कॉइलिंग होगी, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होगी तो उसे हम बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। उसे हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी स्ट्रक्चर। इट इज़ फॉर्म बाय द फर्दर कॉम्प्लेक्स बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना है वो और ज़्यादा बेंड होगा, और ज़्यादा फोल्ड होगा तो वो बन जाएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। जैसे में उसमें स्फीयर बन सकता है, रॉड बन सकता है, फाइबर जैसा बन सकता है, तो उसे हम बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। इट हैज़ वेरियस बॉन्ड्स। उसके अंदर जैसे कि इसके अंदर सिर्फ एक ही बॉन्ड था, एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फर्स्ट का, और फिर किसका? फोर्थ का। फर्स्ट अमाइनो एसिड और फोर्थ अमाइनो एसिड के बीच में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंकिंग थी, तब बना वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब जब टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है तो बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं, फिर वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। फाइन, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो होते ही होते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, कहीं कभार आयोनिक बॉन्डिंग होती है, सल्फाइड से बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग
बॉन्डिंग होती है, वंडर वाल्स इंटरेक्शंस होती हैं, जैसे ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये सब टर्मिनोलॉजी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वैसी वैसी, दिस इज जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल। फाइन। सो बेसिकली इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स बनते हैं और तब बनता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इम्पार्ट्स अ 3D कॉन्फर्मेशन टू द प्रोटीन। उसकी वजह से उसका एक 3D स्ट्रक्चर होता है जो हम ऐसे उसको तरह तरह के से लाइक सभी साइड से उसको विजुअलाइज किया जा सकता है। दिस इज फॉर्म्ड प्राइमरीली ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द R ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड दैट मेक्स अप द प्रोटीन। जैसे कि वो जो आगे वाले थे उसमें हमने देखा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थे वो अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप की वजह से बनते थे। अब जब हम टर्शियरी की बात करें तो उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, उसमें R ग्रुप इन्वॉल्व होता है। R ग्रुप की डिफरेंट डिफरेंट तरह से बॉन्डिंग होती है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में R ग्रुप फ्री रहता है, बट टर्शियरी स्ट्रक्चर में R ग्रुप जो होता है वो जो अमीनो एसिड में R ग्रुप होता है वो एक दूसरे से बॉन्डिंग करती है, तरह तरह की बॉन्डिंग कर सकती है। फाइन। और बनता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। फाइन। उसके बाद हम आगे देखेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इट इज फाउंड इन मल्टीमेरिक प्रोटीन्स एंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। मल्टीमेरिक एज इन जिसके अंदर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तो उसे हम बोलेंगे मल्टीमेरिक प्रोटीन्स, और कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 से ज़्यादा, तो उसे हम बोलेंगे यस, उसमें फॉर्म होती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सिंपल जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें नहीं होती, जिसमें 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें ये स्ट्रक्चर बनता है ज़्यादातर क्वाटरनरी। फाइन। Each polypeptide chain develops its own tertiary structure and are known as subunit। जैसे कि समझ लो हम एक बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन की हम बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती हैं, जैसे कि 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, समझ लो। फाइन। 2 अल्फा चेन है मतलब में उसका जो स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा होता है, 2 का बीटा जैसा स्ट्रक्चर होता है। फिर ये जो है उसका टर्शियरी जो स्ट्रक्चर होता है वो सब चारों का अलग अलग टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है और फिर 4 इकट्ठा होते हैं और फिर मतलब में 2 अलग अलग सब यूनिट हैं। फाइन। तो इसमें सब यूनिट्स होते हैं। फाइन। एंड दैट कम टुगेदर एंड इट फॉर्म्स अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, कितनी चेन होती है उसमें 4 चेन होती हैं, चारों की चारों चेन सिंपल होती है, प्राइमरी होती है, प्राइमरी में से सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी में से टर्शियरी होती है और टर्शियरी होने के बाद उन चारों चेन को हम बोलेंगे सब यूनिट्स। क्या बोलेंगे? सब यूनिट्स। और ये जो सब चारों की चारों सब यूनिट्स हैं वो इकट्ठा होती हैं और फिर बनता है एक प्रोटीन दैट इज हीमोग्लोबिन। इफ यू कैन जस्ट have a look like this. So basically this is suppose say the tertiary structure of the protein myoglobin. अब ये जो tertiary structure है मतलब में it forms the hemoglobin only. So basically ये जो tertiary structure है तो वो पहले primary था, फिर secondary में convert हुआ, फिर tertiary बना, फिर ऐसे ही 4 चेन जैसे हम देख सकते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ये चारों की चारों चेन जिनके अलग अलग टर्शियरी स्ट्रक्चर हैं वो इकट्ठा होती है और फिर बनाती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या बनाती है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फाइन। तो बेसिकली आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा दैट इट फॉर्म्स व्हाट? इट फॉर्म्स द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फाइन। नाउ yes sir, so hopefully you have understood about the primary, secondary, tertiary and quaternary structure of the proteins in this class. fine. so basically हम उसको एकदम ग्रुप कर ले तो वो कैसा होगा? प्राइमरी जो होता है वो असेंबली करता है, फाइन, सिंपल अमीनो एसिड को ज्वाइन करता है। सेकेंडरी होता है उसमें थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग होती है, फाइन। फिर जो टर्शियरी होता है उसमें 3D प्रोटीन्स बनते हैं, पैकिंग होता है। क्या होता है? पैकिंग होता है, मतलब में वो अच्छे से लाइक सब R ग्रुप जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करके अच्छे से फोल्ड हो जाता है, मतलब में पैकिंग हो जाता है। और वो जो पैकिंग की गई सारी सब यूनिट्स हैं वो क्वाटरनरी में आके इकट्ठा होती है, इंटरैक्ट करती है और फिर बनता है एक बड़ा सा प्रोटीन। सो इंटरैक्शन ऑफ मोर देन 2 प्रोटीन्स, मोर देन 2 सब यूनिट्स फॉर्म्स अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। प्राइमरी में होती है अमीनो एसिड की असेंबली, सेकेंडरी में होता है फोल्डिंग, टर्शियरी में होता है वो जो फोल्डिंग हुआ होता है उसका और ज़्यादा कनेक्ट होते हैं वो। तो जैसे कि मैं इधर ड्रॉ करूं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है असेंबली का,
तो दिस इज सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर। फोल्डिंग में क्या होता है, तो फोल्डिंग में जो ये अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि समझ लो ये यही चीज़ है, ये जो फोल्डिंग हो रही है उस फोल्डिंग के अंदर क्या होता है, ये जो सारे जो अमीनो एसिड हैं, ये अमीनो एसिड एक दूसरे से अटैच होते हैं। क्या करते हैं, अटैच होते हैं। जैसे कि पहला का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो चौथे के अमीनो ग्रुप से क्या करता है, तो अटैचमेंट करता है। फाइन, तो वही है उसको बोलेंगे फोल्डिंग। फिर इसमें आर ग्रुप फ्री रहता है, बट जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, जो फ्री आर ग्रुप होते हैं, जैसे कि समझ लो जो जो फ्री आर ग्रुप रह गए थे अमीनो एसिड्स के अंदर, वो सारे आर ग्रुप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो और पैकिंग होगा। फाइन, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ऐसी बहुत सारी 2 से ज़्यादा सब यूनिट इकट्ठा होगी तो वो बनेगी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो दिस इज वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर व्हाट इज बीइंग स्टेटेड ओवर हियर। फाइन, and we shall in the coming class study about the types of the protein. So this is all for today. Thank you.